بیٹھے ہوئے ان کو سلام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم نے نون لیگ چھوڑ کے اور مسلم کانفرنس کی طرف سے ہم نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور انشاءاللہ ان کے والد صاحب کو ہم اللہ کے حکم سے وزیر اعظم بنائیں گے۔ ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اس حلقے کے نیک بندے کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ اللہ کے حکم میں ہم اپنی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں اپنی برادریوں کی طرف سے، جو ہماری برادری ہیں انشاءاللہ مغل فیملی بیٹھی ہوئی ہے، سمرالہ سے بھی آئے ہوئے، سمانی سے بھی آئے ہوئے۔ ہم نے لوگوں کو اتنی دفعہ تھوڑا انتظام تھا، لیکن ہم نے کورونا کی وجہ سے تھوڑا کچھ بندوں کو بتایا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سمانی کے حلقے نمبر 6 میں ان کے والد صاحب کے ان کے بیٹے کی طرف سے بہت بڑی میٹنگ ہم اپنے مغلوں کی طرف سے کرائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پتہ چلے گا اللہ کے حکم سے یہ اپنی سمانی سے پوزیشن 1 نمبر کے لے کر انشاءاللہ پوزیشن پہلی پہ آئیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اور ہم نے نون لیگ کو بھی دیکھا، سب کو دیکھ لیا، ہم کسی کینڈیڈیٹ کو یہ نہیں کہتے کام نہیں کیا فلانا نہیں کیا، ہم ایک ہی اپنا ذہن بنا لیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو ان کے والد صاحب کو وزیر اعظم ہو کشمیری صاحب کی خشرو صاحب آپ بھی ساتھ آئے ادھر صاحب، خشرو صاحب بھی ساتھ نہیں، خشرو صاحب ادھر آئے ساتھ جگہ پیچھا کریں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔ میر صاحب سب کو میں دل کے تھاک رہی ہوں سے ٹاؤن کے ہمارے جو صدر مرزا شمریز صاحب وہ تشریف لائے، ضلع کے جنرل سیکرٹری یوتھ کے راجہ شہزاد جادہ صاحب ان کو بھی، اور سب کو میں دل کے تھاک رہی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں آج کی تقریب میں سابق صدر جو باہر ہیں راجہ ذوالفقار صاحب ایڈوکیٹ انتہائی قابل احترام، اقبال کشمیری صاحب ایڈوکیٹ تشریف فرمائے، میں سب کو دل کے تھاک رہی ہوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اب میں کیونکہ وقت کی قلت کے بعد راجہ محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت قابل احترام جناب محترم چیئرمین یوتھ بورڈ جناب شیخ صاحب، صدر جماعت مسلم کانفرنس جناب مرزا شفیق جلال صاحب، وائس چیئرمین یوتھ بورڈ جناب محترم راجہ شاہد صاحب، محترم جناب راجہ شاہد صاحب جو حلقہ گجرات سے امیدوار ہیں وہاں سے، اور اسی طرح میرے نہایت قابل احترام جناب وسیم خالد صاحب، ایک ایک بندے کا ایک ایک فرد کا جو یہاں پہ ایک ایک قدم چل کے آیا ہے، دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کے آج میرے لیے اعزاز ہے کہ یہاں پہ عثمان عتیق صاحب تشریف لائے ہیں، کیونکہ میں پہلے جو ہے وہ مسلم لیگ میں تھا، تو ہمارے اس جگہ پہ مسلم لیگ کے زباں آتے رہے، اور میں یہ سچی بات آج تھوڑا اپنے آپ کو اتنا زیادہ میں کمفرٹیبل بھی نہیں سمجھ رہا کہ یہ پہلی میرے گھر میں ایسی میٹنگ ہے جو سینکڑوں میں ہوئی ہے، مگر لوگ بھی فنکشن ہوتا رہا ہے الحمدللہ، ہزاروں کی تعداد میں ہوتا رہا ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ اور ایک بات میں آپ سے واضح کہنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلی دفعہ ہم سے غلطیاں ہوئی یا ہم کسی کے کہنے پہ یا کچھ کرنے پہ ہم نے جو انتخاب چھوڑا، وہ ہر جگہ میرا آپ کے ساتھ ساتھ رہا، میں نے ہر وقت آپ کا خیال رکھا، اور آپ نے اس سے بڑھ کے میرا خیال رکھا۔ تمام برادریوں کا یہاں پہ گلدستہ موجود ہے، کسی ایک برادری کی یہاں پہ میٹنگ نہیں ہے، تمام برادریوں کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، اور سب لوگ جانتے ہیں مجھے ذاتی طور پر نہ میرے والد صاحب میں برادری ازم تھا اور نہ مجھ میں ہے برادری کا ہوتا تھا۔ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، سچی بات ہے، یہ ہم سے غلطیاں ہوئی کہ لوگ ہم سے دور چلے گئے۔ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہوں
कि आने वाले वक्त में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से हम जो अगला इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। और जिस तरह हमारे कायदे मोहतरम जनाब सारे जुमहूरियत सरदार सिकंदर याद और जनाब मोहतरम कायद हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अतीक साहब का शफकत का हाथ मेरे सर पर है। आप यकीन करें, मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दिलेरी से हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप मुझे पहले भी जानते हैं, मैं कभी किसी से डरता वरता नहीं हुआ, पता ही है मुझे, क्योंकि मैं वो चीज़ जो है वो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मेरे जो हालात हैं, जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें मैं सबसे बेहतर हूँ। अगर कोई मसला कोई अपनी एंकी फैंकी करना चाहे तो उससे मैं बेहतर जो है वो जगह पर मौजूद हूँ। तो आइंदा भी जैसा कि हमेशा हमारे ये जो 8-10 पोलिंग स्टेशन है यहाँ से संधवा से लेकर डब तक, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे जो लोग हमसे दूसरी जमात में हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको एक एक करके हम अपनी जमात में शामिल करें। और उम्मीद है, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि जो लोग, जो ग्रुप, जो बंदे मेरे साथ चले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक बंदा भी आज तक नहीं टूटा। उससे ज़्यादा हमें जो कुव्वत मिल रही है वो जनाब शाहिद साहब, राजा जफर इकबाल साहब, जनाब मोहतरम खिजर याद साहब, जफर महर साहब की सूरत में जो यहाँ पर पुरानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो पहले से मौजूद है, उहदेदारान मौजूद है, वर्कर मौजूद है, हमें उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। जैसा कि आप समझें कि एक जगह पर मेरा ग्राफ था, इनके आने से या मेरे इनके जाने से जो ग्राफ है अब इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। ये सिर्फ दो तीन दिनों की बात है जब तक ये टूटी नलका का मसला रहता है। आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारा काफिला जिस तरह पिछली दफ़ा जिस जज्बे से निकला था उससे बढ़ के निकलेगा। आज भी मैं यूथ के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पर बाकी जो यूथ के कारकुन हैं, मैं उनको आज तो मदऊ नहीं कर सका, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जो बंदे यहाँ पर हमारे महल्ले बस्ती के हैं, यही हम जो है ये इनको इनवाइट कर सके। इंशाअल्लाह ताला जो अगला फंक्शन होगा इस कोरोना के बाद, इंशाअल्लाह ताला वो एक मिसाली होगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो मिसाली होगा। इसी तरह में राजा ताहिर साहब बड़ीन से तशरीफ लाए हैं, तहसील सदर जनाब राजा इकबाल साहब हैं, राजा शहजाद जादा साहब हैं, मिर्जा शमरेज साहब हैं। सारे एक एक बंदा मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं अगर किसी का नाम लेना भूल गया या ना ले सका या इतना मैं नहीं ले सका तो मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहूँगा। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि इसके बाद तरावियों का वक्त हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर आप सब लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए जनाब अपने कायद मोहतरम से की इजाज़त से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। और सबसे ज़्यादा जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कदीर मुगल साहब मेरे साथ, पहले भी इन्होंने मेरा साथ दिया हमेशा। सच्ची बात है, भाइयों से बढ़कर ये मेरे साथ रहे हैं हमेशा। भाई फारूक जिस तरह है उसी तरह कदीर साहब भी हमारा साथ देते रहे हैं। और जितने लोग आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, कदीर साहब की क़यादत में, एजाज साहब की क़यादत में, खालिद साहब की क़यादत में, मैं इन सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का आमीन। तब्दील कहते हैं अलकासमानी की तरफ से और उनको भरपूर अपनी तरफ से तावन का यकीन कराते हैं। हम आपके साथ हैं। तो मैं जनाब चेयरमैन यूथ बोर्ड को दावत देने से कबल मैं आप सबको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो ईद मिलन मुस्लिम काउंसिल ने जनाब मिर्जा शफीक जलाल साहब को जमात की सदारत देकर जो है हमें इतना बड़ा एजाज़ दिया मेंबर के लोगों। चौधरी गुलाम अब्बास साहब के बाद जम्मू रीजन से पहली दफ़ा जो है वो जनाब मिर्जा शफीक जलाल साहब जो है वो जमात के सदर बने। ये भी हम पे कर्ज है, सिर्फ बरनाला के हल्के पे कर्ज नहीं है, बिम्बर और समानी वालों
में भी कहा है कि हमने मुस्लिम कौंस को भरपूर तरीके से कामयाब करना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम कौंस ने हमेशा जो है समानी की तमीर और तरक्की की बात हो, जिला की तमीर और तरक्की की बात हो, जितने भी मरतबे मिले, जितने मकाम मिले, आज़ाद कश्मीर के अंदर रियासत की सदारत आई राजा ज़ुल्करनैन साहब की सूरत में, मुस्लिम कौंस के दौर में आई, स्पीकरशिप आई, मुस्लिम कौंस के दौर में आई। यहाँ पर बेशुमार लोगों को स्पेशल सीटों पर जो है MLA बनाया गया, इसी तरह मशीर बनाया गया, वजीर बनाया गया। तो कितनी बड़ी लंबी फहरिस्त है। अल्लाह के फजल करम से ये मुस्लिम कौंस को एजाज जाता है कि मुस्लिम कौंस ने हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखा है। तो मैं दिल के अता कर रही हूँ से जनाब चेयरमैन यूथ बोर्ड को, और मैं अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हल्का समानी के अंदर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भरपूर जो है वो मुख्तलिफ बरादरियों से, मुख्तलिफ कबीलों से, वैसे भी मुस्लिम कौंस के कारकुन की कोई जमात नहीं है। मुस्लिम कौंस हमारी मुस्लिम कौंस जमात है। हमारा जो है हम इस नजरिया ला के पाकिस्तान के सिपाही हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिपाही हैं। तो हमने इस बात को साबित करना मैं दावत देता हूँ जनाब चेयरमैन यूथ बोर्ड जनाब सरदार उस्मान की। अहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सदर जमात मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ीक जराल साहब, यहाँ पे मौजूद हमारे मेज़बान आप राजा खुशनूद साहब, इस मजलिस में मौजूद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सीनियर ज़ुलमाए कराम, हमारे जमाती ओहदेदारान राजा नासिर साहब, ज़फ़र महर साहब, राजा ज़फ़र साहब, मुज़फ़्फ़र गिलानी साहब, शहजाद साहब, राजा शाहिद रज़ा साहब, राजा वसीम खालिद, राजा शफ़ीक, और फिर नाम गिनते जाएं तो चलता जाएगा, चौधरी खिज़र साहब, राजा जुल्फ़िकार एडवोकेट साहब, राजा ताहिर इकबाल साहब। मैं आपका, मीडिया का, नौजवानों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस मुख्तसर सी कॉल के ऊपर यहाँ पे तशरीफ़ लाने पर, इस इज्तिमा के लिए, इस बैठने के लिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और खुश आमदीद कहना चाहूँगा कदीर मुग़ल साहब को, सुबानी मुग़ल साहब को और उनके तमाम साथियों को, तमाम नौजवानों को, उनकी तमाम बरादरी को जो उनके साथ चलने वाले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं ये गुजारिश करना चाहूँ इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुकूमत में रहा या अपोजिशन में रहा, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये हल्का समानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक गढ़ हुआ करता था एक ज़माने में। हालात वाक़यात बदलते रहते हैं, तग़य्युर और तब्दीलियाँ आती रहती हैं, कि खुदा ताला के निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि एक 10 साल की एक लंबी मुशक्क़त के बाद, एक भरपूर अपोजिशन के बाद आज हम अपना सफ़र जो है वो हम खुदा के फजल व करम से कामयाबी के साथ जारी और सारी है। और इस सफ़र में जो बुनियादी बात है कि लोगों का हुसूल जो है वो इक़्तिदार है, और हमारा जो मतबा नज़र है वो जमात है खुदा के फजल व करम से। ये नाज से, और इससे पहले ये खुशनूद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। खुशनूद साहब ने, सरदार सिकंदर साहब ने मुझे कहा कि आप खुशनूद साहब को कॉल करके कहें कि वो पिंडी में एक प्रोग्राम है उसमें शामिल हो जाएं, उसमें तशरीफ ले आए। और खुशनूद साहब आए और वहाँ पे हम में से किसी को नहीं पता था, जब वहाँ पहुँच के इन्होंने कहा जी मैं शामिल होना चाहता हूँ। तो हमने कहा जी कि ये तो हमारा ख्याल था कि जिस तरह लोग आते हैं, मिलते करवाते हैं, बिठाते हैं, मुतालबात की फहरिस्त, टिकट के मुतालबात, 100 बातें, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने शामिल होना है, मुझे जब सालार जमहूरियत ने बुला लिया है तो अब इसके बाद बात कोई नहीं रह गई। तो ये भी सियासी तौर पे इनका बहुत पुरवकार तरीके से, बड़े बावकार तरीके से वो इज्तिमा के अंदर शामिल हुए, वापस आए। मुबारकबाद में शमूलियत नहीं कहता, मैं कहता हूँ अपने घर को वापस आ गए। ये ठीक है, ये थोड़ा मोटा ये चलता रहता है। ये बाप दादा की तारीख जो है ये 2-4 साल आगे पीछे जाने से खराब नहीं होती। हाँ, थोड़ा जो दाग धब्बे लगेंगे वो खुदा के फजलो करम से आगे हमें अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी तो हम इंशाल्लाह उन सारों को धो डालेंगे। कोई फिक्र परेशानी की बात नहीं है। ये समानी का आज बहुत अरसे के बाद यहाँ समानी में किसी तकरीब में बात करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें मुझे आज सालार माज़म साहब और मुझे सूफी सलीम साहब, बहुत उनका ख्याल बार बार आ रहा है, जो मुजाहिद अव्वल के देरीना साथी थे यहाँ इस हल्के के अंदर, और ऐसे साथी थे कि जिनकी गुफ्तगू आप लोग खैर जो जानते हैं। मुझे सालार मौज़म साहब ने, जो बात मैं अक्सर सुनाता हूँ, कि सालार मौज़म साहब ने मुझे कहा, मैं उनके पास यहाँ, उनकी अहलिया मोहतरमा गालिबन वफात पा गई, तो मैं उनके पास ताज़ियत के लिए, एक ही मुलाकात है मेरी ज़िंदगी में उनके साथ, तो फिर अल्लाह पाक ने उनको अपने पास बुला लिया।
तो मुझे कहने लगे कि नौजवान मैं देखता रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। एक बात याद रखना मेरी, कि इस खन्नास को अपने दिमाग में मत जगह देना कि ये जमात कोई तुम्हारी वजह से चल फिर रही है। तुम्हारी हड्डियां गल जाएंगी, फिर भी ये जमात इसी तरह चलती फिरती रहेगी। इस बात को, और इतना बड़ा सबक था मेरे लिए जो आज तक मुझे याद है और कदम कदम पे याद आता है कि हम कुछ नहीं है, हम यहाँ पे अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। जो फसल मुजाहिद अव्वल ने लगाई, ये सालारे जमहूरियत के साथ उनको साथ लेके ये आज़ाद कश्मीर के कोने गोशे में जिस तरह मुजाहिद अव्वल ने एक एक करके तिनका जमा करके इन लोगों को इकट्ठा किया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इकट्ठा किया, ये हमारी नालायकियों की वजह से ये लोगों के ऊपर ये आजमाइश आई है। हमारी कमजोरियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से ये आज रियासत के लोगों को ये तकलीफ देखनी पड़ी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कमजोर हो गई और ये वहाँ से जो जिसका नमूना मथा और वो सारे लोग आके यहाँ आज़ाद कश्मीर के ऊपर हुकूमत करते और अपनी